Okay, welcome Anushka. Anushka Verukar. Many of you would not have seen her because when she joined us at that point of time, you had not joined. She, after clearing her AFCAT, has joined us for the SSB classes and she had gone to one AFSB Dehradun. Fortunately, she was one of the girls who cleared the one AFSB. And after clearing the one AFSB, then she was gone for the medical also. She's cleared the medical. I'm sure soon she'll get her name into the merit list also, as she has very good marks for the PF. So I've got her here basically because जो आप लोगों के दिमाग जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं तो क्लास लेता ही आपको कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लाइव क्वेश्चंस होते हैं, लाइव इश्यूज होते हैं, तो मैं उसके बारे में बातचीत करूँगा इससे। और आप लोग अगर चाहें तो अपने कोई दिमाग में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? Let us start the conversation. So welcome Anushka. A very very proud moment for you, your mother, your family. Your mother also is with you here today, and of course your school, college, wherever you've gone to. Your dream था तुम्हारा फौज में आने का या बाद में ड्रीम बनाई? नहीं सर, पहले से था। पहले से था? Good. So that's an interesting thing because तुम्हारे परिवार में कोई है फौज के अंदर? नहीं, पहले हो? No sir. Absolutely first one? First one. दूर दूर तक? My maternal grandfather was in the army, so yeah, that's Okay. So now you basically अपने नाना जी को तुमने जो है, very good. We'll start from the basics. Like once you reached the center AFSB, how it went. Initially we'll talk about your mini documentation and screening. कितने लोग आए, कितने हुए, तुमने क्या करा, and what are the points which you feel people should keep in touch. मैं बीच में क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा तुमको. Followed by then the psychological test, उसमें जो तुम्हारी पूरी सीरीज थी. Then the GTO, जो बता सकते हो, GTO जो 9 टेस्ट होते हैं, and of course the interview, and anything else you like to highlight, and in addition whatever you learned here at Sena Press, if you like to highlight that also. So you can begin initially with your screening test. कैसा रहा, क्या रहा? okay. So we were supposed to report at 6:45, and after that एक mini documentation हुआ where we were supposed to show the COVID certifications and submit a few documents there. After that we sat down for the OIR test. There were 2 sets. Before that they gave us a sample set as well, and कोविड की बात नहीं करें बिकॉज आई डोंट वांट टू हैव द कोविड रिकॉर्डेड. आप कोविड नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको नहीं करेंगे. सो विल इसको थोड़ा काट देंगे बाद में, ठीक है? यू स्टार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट. Okay, so then we were seated for the OIR exam, and there were 2 sets which were supposed to be solved. Before each set, there were sample questions for which they made us familiar with the pattern of the exam and gave us some time to solve them. And after that, we were given 25 minutes to solve those 50 questions in each set. And after that, we were shortlisted. तो दोनों किस टाइप मतलब नॉन वर्बल एंड वर्बल और मिक्स था? It was sort of mixed because sequence and pattern questions दोनों तरीके के questions थे उसमें. तो दोनों sets मतलब mixed थे. There was not specific differentiation between them. तो तुमने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने attempt किए out of the 100 questions, I would say I attempted 98. And I was sure about all the 98. Since negative marking नहीं होती है, जो confirm 98 थे, 2 में जो है guess work थोड़ा सा करके approximate करके किया था. And after that हमें group wise जो है 15 के groups में divide करके we were called for the PPDT. And we were seated in the auditorium, and we were shown a picture. Before that they explained us the instructions कि box fill up करने के लिए we'll be getting 1 minute, we'll be shown the picture for 30 seconds, and we'll get 4 minutes to write the story. And so we were shown the picture. The picture was about there was a boy. ये क्लियर थी नहीं क्लियर थी? It was clear कि एक character है उसमें, and there is a computer, there is a person sitting in front of a computer. Now we can interpret it as a boy or a girl depending on our own imagination. नहीं, but you saying क्लियर थी तो बॉय और गर्ल नजर नहीं आ रहा था उसको? नहीं, क्योंकि face नहीं दिख रहा था उसका. Okay, just the back. Just the back. So that person was sitting and like reclined सी chair पे बैठा हुआ था, and there was a computer in front of me and some papers. So
I interpreted from this. I interpreted it was a girl. I interpreted it to be girl, and she was planning out some screening tests for to be conducted in her college, and so I wrote the story about that. स्क्रीनिंग में कोई एसएसबी स्क्रीनिंग कोई और स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये स्क्रीनिंग मतलब जीके क्विज का एक स्क्रीनिंग है सर. वो कर रही थी तैयारी जी. अच्छा, दैट्स व्हाट यू रोट. या सो आफ्टर दैट 15 के ग्रुप्स में हमें जीडी के लिए बुलाया गया, एंड वी वर टोल्ड टू नरेट अ स्टोरी. सो वी वर गिवन अराउंड 35 seconds टू नरेट द एंटायर स्टोरी. Not 45 seconds, 1 minute. No, so that was around 35 seconds. How do you know the 35 seconds? Because they told us that we will be giving you 30 to 35 seconds. Try to finish told everything. you? Yeah. Okay. And after that, after the narration was done, we started with the GD automatically, and so I tried to get my opinion in the the second position itself. Yeah, but I'm sure like your story was somebody was trying to build up on general knowledge current Right. affairs. बाकियों कुछ स्टोरी डिफरेंट थी, सिमिलर थी कुछ story? बाकी स्टोरीज सिंस कंप्यूटर दिख रहा था उस पे, तो मोस्टली ऐप डेवलपमेंट पे स्टोरीज थी वो. जब पीपल डेवलप ऐप वाला या तो ऐप कॉन्सेप्ट, ऐप वाला कॉन्सेप्ट या ऑनलाइन एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिख रहा था हमें. मेरी स्टोरी थोड़ी स्टैंड आउट कर रही थी उसमें, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही अलग था. मैं काम करने पे कॉन्सेप्ट था पूरा. एंड सो जीडी में मैंने अपना पॉइंट जो स्टार्टिंग में रखा अबाउट द but I'll wait. You go to GD now. राइट. During the narration part, were people asked to say कि नहीं बहुत होकर रोका था बीच में, or they were let continue for those more than 35 seconds? Nobody was led to continue. So तुम्हारी भी स्टोरी रोकी गई थी, you could complete. मेरी स्टोरी में the last the aim plus part was stopped. I could complete my main story, but the aim plus I couldn't say. What is the aim plus? The aim plus was to conduct extra sessions for current affairs, so that the students can have a better participation in the future. You understanding what I keep saying about the aim plus? I showed you in the other video also कि aim plus अगर आप देखते हो स्टोरी के अंदर, आपकी स्टोरी थोड़ी स्टैंड आउट करती है, ठीक है? You like to highlight something on the aim plus? You thought, और किसी ने बताया aim plus? नहीं बताया किसी ने. aim plus नहीं, वहाँ पे किसी ने नहीं बताया. You're the only one. Yeah. So getting the importance of the aim plus. Not very many people जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं खास करके, जो रिपीटर्स होते हैं थोड़ा फर्क पड़ जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स में जो है एम प्लस वगैरह लोग जरा कम बता पाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग यू अपनी स्टोरी में इफ़ यू कैन ब्रिंग इट, नॉट दैट कि एवरी स्टोरी हैज़, बट इफ यू कैन ब्रिंग इन, प्लीज ब्रिंग इन द एम प्लस. So I just want to highlight the aim plus part. Sorry, continue. And GD. So GD was a little bit, everybody was hesitant to start. So somebody started, and then I came in at the second place, where I highlighted the character and what I think the theme was going on, and what was the action and the mood of the story. And after that, the GD became a little chaotic because people started speaking, they started overlapping on each other. I had to find out moments, so I was able to speak about one or two more times in the GD. And by the discussion, that definitely people did not take my story as a common story. It was more inclined towards the app development story. So then came the chance to nominate a person to narrate the story, and a couple of people nominated themselves. So I went with them and told that they can go. Somebody took my chess number, said my chess number, that chess number 21 should be the one to narrate the story. And then other people followed, and since I was sitting in the middle of the semicircle, so that's why everybody took my chess number, and then You narrated this. yes, yeah. Okay, at times narration is not a constant thing. Narration generally ग्रुप प्लानिंग में होता है, बट यहाँ पर narration कुछ सेंटर्स में करवा भी देता है स्टोरी. So at that point of time तो अपना narrate नहीं करनी स्टोरी. I'm sure you narrate your own story. No. Group story. Yeah. Regarding the app development and ठीक है, अपनी स्टोरी को सुनानी है. आपने किसी की कहानी ग्रुप के साथ जो निकल के आता है, ग्रुप की स्टोरी. ऑलराइट. So much so for your स्क्रीनिंग पार्ट. फिर कितनी देर वेट करा? वेट काफ़ी मतलब देर, 1 घंटे के अराउंड, बिकॉज देयर वर अराउंड 230 पीपल हु रिपोर्टेड, 239, and that's why it took a lot of time for the entire groups to get completed. There was about an hour and a half wait, and after that the results were announced. शॉर्टलिस्ट कितने हुए? Shortlisted were 59 people out of So out of 239, around 59. Yeah. 180
had to let go. Hmm. Okay. Now we'll move to the next stage. Because Air Force में the psychological test is conducted on the same day. Army, Navy में it is conducted on the next day. So in that case they have to after lunch के बाद दोबारा से बिठा देता है लोगों को. Yeah, you can continue. So our psychological started at around 7 in the evening, and so we were told about the instructions. It started with TAT, and बता दिया कि जो you will be shown a picture and you have to write down a story. And after that, so the pictures were shown one by one. The pictures were not something like very common which I had done before, but I had to find out a theme which had to go with it. So it was something, it had to be a little bit, I had to put in some brain there. Okay. So But- how many themes you had worked out from your side? I had worked out a lot of themes, but I had to put something. याद नहीं कितनी? नहीं सही नहीं. 30, approximately 40. 30-40 कह रहा हूँ. So you understanding the importance of the themes. You may not get the picture as you are looking for, but अगर themes आपके दिमाग में होंगी तो कोई ना कोई theme उसके साथ आपके फिट इन हो जाएगी. Duly modified for the picture. I am not saying कि आप वो कोई प्री कंसीव स्टोरी दीजिए आप, but related with it, you know already the themes at the back of your mind. तो उसके हिसाब से you can now write a story. So preparing for the themes is very very important. I don't know how many of you have done that. Some people have done that. किसी ने बनाई themes वगैरह? Yes, sir. थीम्स आप लोगों ने करी हैं? Yes, sir. तो कम से कम 30-40 थीम्स आप लोगों के पास होनी चाहिए. ओके या So what I used to do was during practice कि जितनी stories लिखी I used to try कि हर story का theme अलग हो, जिससे I used to get into some details of that thing as well and get it corrected so that यहाँ कि पे पता चले हाँ कितनी जब details practice है. करके. हाँ. तो इसी वजह से मतलब थीम्स थोड़े थोड़े थे दिमाग में, क्योंकि उस टाइम तक एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो जो मतलब आ रहा था दिमाग में आई हैड टू मॉडिफाई दैट अकॉर्डिंगली. आफ्टर दैट WAT आई फाउंड इट टू बी रियली सिंपल बिकॉज प्रैक्टिस भी थी एंड द वर्ड्स वर वेरी फेमिलियर. couple of words were there which I was not able, which were not clicking at the moment, so we get 30 seconds to turn the page, and around that time I wrote the sentences because they clicked. जो मैंने बताया था ना, WAT में 30 सेकंड मिलते हैं आपको. पेज 30 सेकंड में तो पेज टर्न करना होता है, लेकिन मिलते हैं एक्स्ट्रा. You can go back, you written the word there, you can complete at least 2 of the sentences. Alright? Yeah. सो WAT में फिर भी मतलब अराउंड एक या 2 वर्ड्स थे जो रह रहे थे लास्ट में भी, बट आई जस्ट स्किप देम फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि बाकी मैंने लिख लिए थे सेंटेंसेस. देन केम SRT. सो SRT आई वाज एबल टू डू वेरी क्विकली बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी एंड वन लाइनर में जो आंसर्स दे मैं तो ये पूछना भूल गया, WAT कितने करे तुमने? मैंने सारे. 60. यस. Okay. Was there anyone who did lesser WATs and still could clear the what do you call आपका SSB? There were people who did around 47, so they were through, and SRTs भी कई लोगों ने छोड़े थे, so SRTs कितने, तुमने कितने करे SRTs? सारे. सारे करे. You did all the SRTs, all the WATs, stories तो करी होंगी सारी करी. Anyone who did less number of SRTs? Yes, there were many people because वो लोग लेंथ वो नहीं कर पा रहे थे उसकी आंसर की. So the SRTs, many people had to leave around 10 to 15 SRTs because they were not up to speed there. No, what do you basically attribute that you could complete all WATs and SRTs? क्यों हुआ ऐसा, क्या क्या करा तुमने? पहली चीज़ प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ वो प्रैक्टिस जो कि उसको करेक्ट कराना. बिकॉज SRT में भी पहले बहुत लंबे लंबे लिखती थी, 2 या 3 लाइनर आंसर होते थे, बट उसी चीज़ को शॉर्ट में लिखना मैंने आपसे करेक्ट करा के सीखा, एंड उसी को प्रैक्टिस, और यहाँ पे जितने सेट्स थे वो सारे कर डाले, तो उसी को प्रैक्टिस कर करके वो आदत बन गई कि जो एक सिचुएशन को देख के किस तरीके से क्या क्या वर्ड्स आने चाहिए वो सारे यूज्ड टू पुट डाउन. So before we proceed further, anything you like to ask her on screening और अपनी psychological test किसी दिमाग में कुछ भी पूछना चाहता है anyone? Or you please handle? As you have said that you completed all the SRT. Slightly louder. So now, is there any SRT there where you stuck, but you completed, but you stuck at there? कोई लगा SRT ऐसा Complicated. जो तुम समझ में नहीं आ रहा था लेकिन कर दिया? इस पॉइंट पे तो याद नहीं, बट देयर माइट हैव बीन वन, बट कि इस तरीके से स्टक नहीं हुए थे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें. आई स्टिल गॉट अराउंड द सिचुएशन एंड रोट द आंसर. सो देयर वाजंट एनीथिंग वेरी न्यू टू मी इन दी. मतलब जो तुमने यहाँ पे करा उसमें से ही आया ना? हाँ.
जितने थोड़ा मेरे पास कम सेट्स हैं, सारे सेट्स अगर आप कर लोगे, मेरे पास काफ़ी सेट्स हैं, सो धीरे धीरे करते रहोगे आप, सो मोर और लेस यू विल कवर ऑल पॉसिबल SRTs, ओके। तो नया कुछ नहीं है उसके अलावा, यही इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा। SRT मैंने वैसे बताया इज ईजिएस्ट ऑफ ऑल अदर टेस्ट। SAT भी करेगा, SAT क्या करेगा, SAT में प्रिपेयर करके गई थी, so I वो wrote it down. कॉपी पेस्ट। मतलब I saw the points before going to the psych hall. I saw the points, मैं अपनी नोटबुक लेके गई थी, and क्या क्या मुझे वर्ड्स यूज़ करने थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आई फ्रेमिंग द सेंटेंसेस एंड आई वाज एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग इन one paragraph. तो कितने बेसिकली टाइम लगा तुमको SAT के लिए? SAT के लिए I took we get 15 minutes, I took around 10 minutes. एंड यू डिड एनीथिंग इन दोस 5 मिनट्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं? WAT खत्म कर ली, अब समझ गए, लेकिन ध्यान रखना आराम से करना है. if you're caught then you will be punished, don't get caught. मैं कल ही बता रहा हूँ आपको SAT में टाइम बचा के, SAT is not all that important. Keep that time for your WAT exam. Are you getting my point? Remember that. Anything else? हाँ, कुछ पूछो और कुछ पूछना चाहते हैं? How do you deal with the chaotic situation of GD? Chaotic situation GD. There is no trick to deal with it. You just have to see कि चार लोग एक साथ जब बोल रहे हैं, there comes a point when those four start to low down. उसके बाद वॉल्यूम जैसे ही लो हो रही है, so you start your point at a higher volume and then grab the attention. That's the only thing I do. And don't add to the noise. Remember this part. उस हल्ले में अगर आप जोड़ रहे हो अपने आप को, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम क्रिएटर। तो हल्ला मच रहा है, हल्ला मचने दीजिए, डोंट ऐड टू द नॉइज। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन दिमाग में? या इन गो अहेड विद नाउ। जी. कितने बजे खत्म हुआ, क्या हुआ तुम्हारा शाम को? तो ये 7 बजे से 9:30 तक चला था, 9:30-10 तक. एंड फिर उसके बाद वी फिल्ड अ PIQ फॉर्म, तो उसके लिए 45 मिनट्स अराउंड लगे. तो वी वर बैक एट अराउंड 11. फॉर्मेट सेम है जो मैं दिया, PIQ फॉर्म सेम? हाँ. बट PIQ भी एक छोटी सी बात मेंशन करूँगी. PIQ मतलब आपको जैसे जैसे वहाँ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप वैसे वैसे फिलअप करिए, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने कई बार ये चीज़ मेंशन की थी कि यू थिंक यू नो हाउ टू फिल द PIQ फॉर्म बट यू डोंट. तो कई बार मतलब वो अलग तरीके से आपको लिखवाना चाहेंगे कुछ चीज़ें, सो यहाँ से रट के मत जाना कि क्या लिखना है, मतलब प्रिंट मत कर वेरी देना. इंपॉर्टेंट, आई जस्ट हाईलाइट व्हाट इज ट्राइंग टू डू. इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, डोंट गो विद एनी प्री कंसीव्ड कि हमको पता है. वहाँ जाके मान के चलना जो मैंने समझाया, इट इज ओनली एज अ प्रैक्टिस. वहाँ फ्रेश इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हर चीज़ की आपको. फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस. एवरी टाइम विद द न्यू इंस्ट्रक्टर दे रूल्स रेगुलेशंस दे कीप चेंजिंग. सो डोंट गेट कि अरे ये तुमने कर लिया, ये तो ऐसे ही करना है, वैसे ही करना. सॉरी, जस्ट फॉलो वॉट एवर दे सेइंग देयर. एंड अगर आप रिपीटर भी होते हो तो रिपीटर बैचेस में भी अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन मिलते हैं. रिमेंबर दैट. हाँ, मैं एक चीज़ पूछना भूल गया रिगार्डिंग सर्कल करना वाला. मैं उसको इंस्ट्रक्शन मिले थे कुछ तुमको कि कितने सबको करना है, नहीं करना है? So since there was only one character, so they told us to circle our main character. And everyone circled. I'm sure they would have circled. You don't know. I don't know. You're not aware of it. So circling the character बोला गया था वहाँ पर करना. ठीक है? Okay. Yeah. So next day we had a GTO from like 7:30, and so discussions काफ़ी होते हैं because we knew that GD would be the first of the task. Discussions हुए थे पहले रात, पिछली रात की जो everybody would be cooperating and everybody will let everybody speak because we have a lot of time, since everybody was aware of how the tasks were going to be conducted. But since when we entered the GD and GTO explained to us what all tasks we'll be going through in these 2 days, and the first one he gave us the topic. The topic was for our choice. It was why some states are not regulating the use of alcohol, something like that. And there were 3 factors given about it. So the GD started and it became chaotic very quickly. So nobody was letting anybody else speak. There were 4-5 people speaking on top of one another. And so since we all were wearing masks, so our GTO allowed us to remove the shields and just have our masks on. And so that's why we were not able to see
how much, at what volume are we speaking? We are not able to realize that. So people were shouting and it was getting very chaotic. So usme we have to कितने लोग थे आप ग्रुप में? 8? We were 8. 8. So उसमें we had to find moments जहाँ पे जो थोड़ा लो डाउन हो रहा है जिससे I can keep my points. I was able to speak 3 or 4 times during the first GT and 3 or 4 times during the next one. अंडरस्टूड। मैं एक 3 वाला सिस्टम बना रखा ना आपको। एक बार नहीं बोलोगे तो कितने पुशअप में 30, 2 बार नहीं 60 और 3 बार नहीं तो 90। ये इसलिए 3 मिनट, कम से कम 3 बार अगर आप आ गए तो मेड योर प्रेजेंस फेल्ट। उससे ज़्यादा मौका मिलना थोड़ा मुश्किल है। जनरली जो फ्रेशर होते हैं उसमें इतना क्योस होना नहीं चाहिए, बट एज शी इज सेइंग वहाँ पे क्योस था बिकॉज लेट मी शेयर विद यू, जो गर्ल्स के बैचेज होते हैं खासकर ग्रेजुएट्स के, उसमें क्योस होता है, गर्ल्स के ग्रेजुएट्स वाले। सिमिलरली एनसीसी वाले जो होते हैं आपके, जो ग्रेजुएट्स वाले जो भी होते हैं वहाँ पे क्योस होता है। ओके, विदाउट कास्टिंग एनी एक्सपोजर, आई एम नॉट कास्टिंग एनी, आई एम जस्ट शेयरिंग। ऑलराइट, यस। So GD के बाद मतलब मूड खराब हो गया सबका। नहीं तो पहला तुम्हारा था, द टॉपिक वाज रिगार्डिंग अल्कोहल बैन इन, वो था बेसिकली सम स्टेट्स हैव बैंड अल्कोहल, सम हैव नॉट बैंड। व्हाई? जैसे बिहार में इट इज नॉट देयर, है ना? और कहाँ का नहीं है? और किस किस को मालूम है? गुजरात में नहीं है, बिहार, हाँ एमपी में परमिटेड है भाई, बैन नहीं है ना सर। लक्षद्वीप में है, एक्सेप्ट वन आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप वहाँ पे है, और कवरत्ती में परमिटेड है बिकॉज वहाँ पे एक होटल है, वहाँ परमिटेड है, बाकी जगह परमिटेड है। इसके अलावा नागालैंड, मजे की बात है कि नागालैंड में लोकल लिकर परमिटेड है, वहाँ की IMFL जो होती है वो परमिटेड है, बाकी सारे स्टेट्स में लिकर बैन नहीं है। कहने को गांधी जी का ये था, मतलब सपना था कि भारत देश बने बिना, क्या कहते हैं, बिना दारू वाला देश। ठीक है, ओके। क्या दूसरा? इसके साथ का जो चॉइस टॉपिक था दैट वाज इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स। सो वी ऑल थॉट कि इसमें फैक्ट्स चाहिए, इस वजह से एवरीबॉडी वेंट विद द अल्कोहल टॉपिक। एज आई टोल्ड यू, इनवेरिएबली दो टॉपिक देते हैं जो डिफिकल्ट होता है, दैट इज लेट ऑफ बेसिकली बिकॉज कोई ना कोई बोलेगा अरे यार मेरे को पॉइंट नहीं आता, छोड़ो इसे। 2 मिनट मिलते हैं आपको टॉपिक चूज करने के लिए। नो सेकंड जो GD हुआ, सेकेंड GD कंपलसरी टॉपिक था कि वाई इज इंडिया एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ इट्स वेपन्स फ्रॉम द आउटसाइड एंड वाई इज इट नॉट प्रोड्यूसिंग इट इंडिजियसली। आत्मनिर्भर भारत क्यों नहीं है? आत्मनिर्भर भारत के। तो वो भी बहुत chaotic GD हुआ, मतलब इसमें तो देयर वर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, सो एवरीबॉडी वाज एबल टू स्पीक, बट कितने पॉइंट्स सुनाई दिए दैट वाज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तुम्हारे 3 पॉइंट तुमने दिए? मेरे 3-4 पॉइंट ठीक ठाक। हाँ। ओके, सो आई स्पोक एट लेंथ, मतलब 10 से 15 सेकेंड हर पॉइंट में आई गेव। सुन रहे हो आप लोग? आई कीप सेइंग व्हेन यू स्पीक एट लेंथ एंड स्पीक वेरी क्रिटिकल इश्यूज, स्पीक करना है कोई इंपॉर्टेंट इश्यूज को, नया चीज दिख रहा, डोंट बी रिपीटिंग समबडी एल्सेस। You could manage that. Yeah. Okay. Then And after that, we had the GP. GP में the GTO explained to us the entire situation, gave us the write-up to read for 5 minutes, and after that we were given 10 minutes to write down the solutions. something similar what we did here. Yeah, similar cases. कोई ट्रेन का होगा, क्या कर उसमें? हाँ, डैम था, एक डैम में बॉम्ब ब्लास्ट होना था, एक छोटी चोरी थी या फिर, और एक ट्रेन का कुछ इशू था शायद। बॉम्ब फटने वाला होगा। हाँ। वो एक ही चीज़ है, जिंदगी वो की वो है, फिक्स है इसके अंदर बेसिकली। So there were four situations. और कोई बंदा बेहोश हो गया तो नहीं? हाँ, चोट लगी थी। चोट लग के बेहोश हो गया। हाँ। हाँ, जिसको लेके जाना था। ये पूरे वही सेम कहानी है, एग्जैक्टली सेम है। प्लीज प्रैक्टिस दिस। एंड इम्पोर्टेंट क्या मैंने बताया था, एम यू फॉलोड दी, वही वाला अब जो बनाया Tabular, हाँ। टैबुलर। एम लिखी पहले, हाँ, पहले एम एक सेंटेंस में, ठीक है, फॉलोड बाय the प्रायोरिटीज, task, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। रिसोर्सेज मैंने बताया था कल, जो गलती कर रहे थे आप लोग, रिसोर्सेज की गलती नहीं करना। ओके, So 10 minutes हमें मिले थे। I was able to do it in 5 to 7 minutes क्योंकि टास्क ज़्यादा थे नहीं। I was sitting there planning कि GD कैसे करना है अब। And so GD again became very chaotic. पानी पीना। So नहीं,
GD फिर से मतलब सारा chaos चल रहा था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा chaos हो रहा था and Was there someone who was creating the chaos या ये सारे के सारे? there was one girl who was actually unknowingly or knowingly when she used to start speaking, she never stopped. So when people interrupted as well to She come didn't in, she didn't stop with her point. I'm sure she didn't get selected. No. ठीक है, आप समझ रहे हो कि ज़्यादा बोलने से सेलेक्ट होना ऐसा कुछ नहीं है। कम बोलो, अच्छा बोलो। ये नॉर्मल हमारे भारत के वैसे भी पढ़ाया था, हिंदी में पढ़ाया, जो बोलो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा बोलने से कोई ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ने वाला। यू आर जस्ट एडिंग टू द नॉइज एंड यू आर नॉट लेटिंग अदर स्पीक। यू आर नॉट लेटिंग अदर स्पीक इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। रिमेंबर दैट पार्ट। लीडर क्या होता है? गुड लिसनर एंड ए गुड स्पीकर, दोनों चीज़ें। समझ रहे? So GD में भी we had to find moments कि 2-3 बार अपना point insert कर दिया, and after that one of the chess number 5 concluded the entire thing. She was asked to conclude the entire solution of the group, and so we all agreed to the solution and GP was done with it. After that we were given a small break during which we started discussing the GD with the other groups, what happened with the other groups. So what we got to know was the other fresher groups were hesitant in speaking during the GD, while our group was pure chaos. chaos is happening basically वो बोलते हैं ना, मैंने बताया क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं? सुसाइड बॉम्बर। ये होते हैं सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, वो मतलब नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, दूसरों को बोलने नहीं देंगे। तो उस चक्कर में ज़्यादा कई बार ग्रुप वॉच आउट हो जाते हैं इस चक्कर में। ये तो शी इज फॉर्चुनेट शी इज क्लियर्ड, अदरवाइज आई एम श्योर सच ग्रुप्स गेट वॉच्ड आउट बिकॉज ऑफ द सुसाइड बॉम्बर्स। खुद तो मरेंगे, साथ में सबको लेके डूबेंगे, समझ लो। सो दैट इज व्हाई बैच हैड दिस सुसाइड बॉम्बर। आई थिंक शी वाज देयर विद यू इन द प्रीवियस उसमें ग्रुप में भी आल्सो। No. शी वाज नॉट देयर। ओके, एंड व्हिच प्लेस शी वाज फ्रॉम? हरियाणा, पानीपत. अदरवाइज शी वाज स्पीकिंग वेल। No, she wasn't speaking like कुछ solid content भी नहीं दे रही थी वो, and she was just speaking, just for the sake of speaking. You can tell them about the content part of these people. How did you prepare for the content? Read news, read करो, current affairs video देखो, बहुत चीज़ें, मतलब just keep yourself updated and You started your journey जब शुरुआत में आए थे, लास्ट में तुम्हारा बहुत ग्राफ बहुत ऊपर गया। इन द बिगिनिंग मैं बिल्कुल मतलब करिकुलम के साथ अपने बहुत वो रहती थी, उसके साथ भी मतलब इतना नहीं कह सकते, बट स्टिल आई वॉजंट वेरी मच इनटू रीडिंग एंड करंट अफेयर्स, उतना मैं इन्वॉल्व नहीं हुई थी, एंड दैट अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस हियर इन द GDs. आई कुड सी दैट आई वॉज जस्ट आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज अबाउट टॉपिक्स, एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, गेटिंग माई सेल्फ अवेयर अबाउट द recent like happenings and everything, I started getting interested in them as well as I built up my knowledge bank, and that's why I improved my performance in the GD, where I was able to speak 4 to 5 times with a good content. और जो मैंने बताया था वो उससे फायदा नहीं हुआ? क्या सर, इसमें सब कुछ Current affairs. हाँ, करंट अफेयर आपके उससे तो फायदा हुआ है। तो करंट अफेयर्स जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, दैट इज ओनली स्मॉल पार्ट, यू हैव टू बिल्ड अप ऑन दैट। मैं दिखाऊंगा, आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज हमारी रिटेंशन वैसे भी जो है 20-30% होती है जब भी हम क्लास अटेंड करते हैं। You have to go back and read and then add to that knowledge. If you are not adding to the knowledge, then you are staying behind. Okay, remember this part. और knowledge is the one thing which will see you through GD completely. GD ही नहीं, आपका confidence level बढ़ाएगी। ग्रुप के अंदर खड़े हो, बात कर रहे हो, increase your confidence. Was there anybody saying कि नहीं I don't agree with you there? No. ऐसा नहीं। मतलब एक दूसरे में शायद से हाँ कर रहे थे वो लोग, बट मेरे पॉइंट्स पे किसी ने ऐसे मतलब किया नहीं था। आगे बढ़, GP हो गया। GP हो गया, वी हैड अ ब्रेक, एंड उसके बाद मतलब एवरीबडी हैड अ बैड मूड, क्योंकि GD जिस तरीके से डिस्कस हुआ था पिछली रात को वो कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब डिस्कशंस पे रिलाई नहीं करना चाहिए, एक तो ये सीधी सी बात है, वो मुझे लग ही रहा था कि कुछ होगा नहीं सुबह, बट फिर उसके बाद GP PGT स्टार्ट हुआ। सो द GTO एक्सप्लेन द रूल्स, सिमिलर रूल्स थे यहाँ के जैसे, एंड उसके बाद उन्होंने मतलब ये भी बताया था कि कंसेशन दे दूंगा मैं इफ़ आई थिंक योर सोल्यूशन इज़ वर्किंग, सो यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो लेवल्स वही थे, डबल ब्रिजिंग मोस्टली हो रही थी। फर्स्ट लेवल वॉज वेरी सिंपल। मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में आजकल जो पीछे रखा है, आपको देख रहे हो बल्ली एंड प्लैंक, इनकी डबल ब्रीदिंग पर ज़्यादा जोर है एयरफोर्स वाले में। आर्मी में अभी भी वो लेवल 1, 2, 3, 4 चल रहा है,
एयरफोर्स में ज़्यादा डबल ब्रीदिंग चलती है, खास करके देहरादून वाराणसी वगैरह, ठीक है. सो दैट वी हैव प्रैक्टिस्ड हियर, सो आई एम श्योर दैट वुड हेल्प. हाँ तो बताओ. सो लेवल 1 एंड 2 इजीली कंप्लीट कर लिया. अब पीजीटी में क्या हो रहा था कि जो जीडी में ज़्यादा बोल रहा था उस पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे थे. सो आई हैड टू ब्रिंग द फोकस टू, क्योंकि आई हैड द सोल्यूशंस, आई वाज टेलिंग देम द सोल्यूशंस बट दे वर काइंड ऑफ इग्नोरिंग मी. तो लेवल 3 पे जाके ये हुआ कि दे गॉट स्टक देयर. So they were like violating the rules. I was stopping them from violating the rules all the time. So I was reminding them just pick up the rope and this and that. और लोग क्या हम बता रहे हैं, आपके किसी का रस्सी टच कर रही है या कोई गलती कर रहा है उसको आप हाईलाइट करोगे. ये नहीं करना तू गलती कर रहा है, ये बना रहे यार वो रिपीट कर दो या जो कर दो, आपकी गलती होगी. मतलब रिक्वेस्ट मोड में रहना है, दुश्मनी नहीं करनी उससे. दुश्मनी तो नहीं करना. नहीं. एंड उसके बाद फिर लेवल 3 पे दे गॉट स्टक वेयर दे हैड टू पुट अप अ फल्क्रम एंड देन बैलेंस द प्लैंक. सो आई टोल्ड देम दैट वी कैन डू इट इन दिस वे, just put it here, we can try out this method, and that worked. It was a stable solution and everybody was able. Now after that they started to look at me for the solutions, just to give them some advice or something. So I never really climbed on the obstacles, on the structures. So I used to take the concession and go, because most of the structures were unstable, which they made earlier. After that, so level 3 and 4, I gave my major contribution in the retrieval as well as on the Recovery and ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है. नहीं कि कैसे होगी. मैं बताया आपको, पीजीटी और रिकवरी एक ऐसी चीज़ है जो हम यहाँ सेनाभ्यास में जहाँ जोड़ देते हैं, बाकी जगह लोगों को जल्दी आइडिया नहीं होता. हम क्या करते हैं, मूविंग हेड पे हम प्रैक्टिस करते रहे. वी डोंट नो हाउ टू रिकवर दी स्टोर्स, वी डोंट प्लान फॉर रिकवरी ऑफ दी स्टोर्स. That is very important that you plan for the recovery of the store. Okay, yeah. One more thing the people were not focusing on was कि जो रस्सी थी वो बहुत मोटी रस्सी थी. So that was बांध सकते हैं. नहीं, you couldn't tie it, but that was meant for providing support. Support मतलब दो structures के बीच में जो support, वो चीज़ throughout ignore की लोगों ने. And level 4 में वो काम आई जब I told them to create a support and put the plank on that. So that's a stable support एक बन गया, and plank को एक stable solution वो वो create हो. विषय वाला था जैसे वो दो पिलर्स थे एंड उसके बीच में क्रिएट करना था. सो इससे पीजीटी मतलब कंप्लीट हो गया. उसके बाद वी हैड दी एचजीटी, जहाँ हाफ हाफ ग्रुप्स डिवाइड कर दिए थे एंड एक लेवल दे दिया था. कोई भी एक लेवल दे दिया. हाँ, अलग से दिया था वो. एंड लोड का क्या, यहाँ लोड तुम कोई लोड पहले लेके भागते नहीं था तुम्हारे? हाँ भाग रहा था. हाँ. सो आई टोल्ड देम कि मतलब एक बार उन्होंने जगह ऑक्यूपाई कर ली, मतलब क्योंकि सुन नहीं रहे थे पहले, तो आई टोल्ड देम जस्ट ब्रिंग द लोड बैक एंड लेट वन अदर पर्सन गो. सो व्हेन वन पर्सन क्रॉसेस वी कैन शिफ्ट द लोड टू दैट पर्सन. मुझे जो मैं दिखा रहा वीडियो आप लोगों को, दिस विल हैपन. सो लेट इन समबडी मेकिंग अ मिस्टेक, लेट देम मेक अ मिस्टेक. आप उसको करेक्ट करोगे तो आपकी इंपॉर्टेंस वैसे भी बढ़ जाएगी. ओके, या. सो पीजीटी वाज डन. आफ्टर दैट एचजीटी में वी वर हाफ ग्रुप्स, तो उस पर ईजी हो गया था थोड़ा बताना एंड करना. सो एचजीटी में एक चीज़ ये हुई थी कि मुझे चोट लगी थी, क्योंकि मेरा प्लैंक और बल्ली के बीच में उंगली आ गई थी एंड इट स्टार्टेड ब्लीडिंग. सो आई डिड नॉट मेक अ लाइक बिग डील आउट ऑफ इट एट द मोमेंट. But I did tell them कि please hold this balli because I'm not able to hold it. I have injured my finger. ये मैंने बताया कि पसीना पोंछ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सब ठीक है. बहुत चोट लगी छोटी मोटी, उसको बड़ा कर रहे हैं, सब इग्नोर करना है आपको. ये सब बता रखा आपको, कुछ नई चीज़ नहीं. सो आई टुक अप अनदर टास्क जिसमें मतलब बल्ली को पकड़ना नहीं था, तो क्योंकि पकड़ नहीं पा रही थी मैं ढंग से, तो इस वजह से आई टुक अप द टास्क ऑफ टाइंग द रोप एंड उसका मतलब ब्रिजिंग करने का टास्क ले लिया था. सो वी वर एबल टू गेट द अदर पर्सन एंड डू द एंटायर रिकवरी विद इट. सो ये हमारा उसके बाद हो गया था. एंड लेक्चरेट हुआ था उसके बाद हमारा एचजीटी होने के बाद. वी हैड द लेक्चरेट, वी वर गिवन 3 topics, 4 topics, out of which we had to select one and speak on it for 3 minutes. आई थॉट तेरी मेमोरी अच्छी है. अभी 3-4 मुझे सब वो चौथा अपना याद नहीं रहता टॉपिक, तो इस वजह से चार टॉपिक मिलते there हैं. were 4 topics. 4 टॉपिक्स थे, 3 नहीं 4 मिलते हैं. एंड टॉपिक्स में मुझे कुछ लेवल दिख नहीं रहा था उसमें सबकी Similar कुछ से लग रहे बहुत हाँ सिंपल टॉपिक्स थे. वो सिंपल टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि फिर उन पे कोई Points स्पेसिफिक नहीं इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. तो तुम्हारे जल्दी क्या टॉपिक से जो याद है, तुमने क्या मेरा बोला? आरबीआई था एक टॉपिक, एक मेरा पेस्टिसाइड्स था, एक नेचुरल गैस था एंड एक आउटसोर्सिंग था. आउटसोर्सिंग नहीं, आई सेलेक्टेड नेचुरल गैस.
उसके बाद मैं उसके साइंस वाले पोर्शन पे नहीं गई, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया कोप 26 एंड इस सब से, जो मोर इनटू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को मैंने हाईलाइट कर दिया उस चीज़ में. सो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्पीक फॉर गुड 3 minutes. तापी वगैरह की बात करें, तापी की बात नहीं करी. नहीं तापी पता है ना? पाकिस्तान इंडिया हाँ? पाइपलाइन है. तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान इंडिया. गैस पाइप. हाँ चलो. तो मैंने उसको कनेक्ट करके मतलब बढ़ा दिया उसको एक्स्ट्रा, ये सिर्फ उस पे पर्टिकुलर टॉपिक को मैं उसकी रेंज इंक्रीज कर दी. उसके बाद 3 मिनट तक आई वाज एबल टू Could manage. हाँ. Anybody who went beyond or anybody who finished early? There were people who were like just stretching it out unnecessarily, but nobody finished it early. Nobody went beyond अच्छा. for the topic. क्योंकि टॉपिक सारे ही इस तरीके के थे, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग एंड अर्बन जंगल, इस तरीके के टॉपिक्स थे. ठीक. So the lecturate day 2 was done with the lecturate. यहाँ तक कोई किसी दिमाग में कोई प्रश्न नहीं. ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग, PGT, NGT and lecturate में कोई anyone like to ask any question? Anyway. During task, the GPO was putting pressure on you by telling like the time is finishing or you have less time. मतलब वो प्रेशर बना रहा था आपको कुछ ऐसे कह रहे हैं. तो आपने मतलब कैसे किया, तो फिर रिप्लाई किया कि हाँ, we just said noted so that's about it. बस फिर हम लोग अपने टास्क पे लगे. Because इतना टाइम निकला नहीं था. उन्होंने सेकंड लेवल पे जब when we were working, so he said half of the time is done. Because हमें पता था कि नहीं होगी. We just acknowledged him and that's all. ठीक है. How many plans the GTO asked in your command task? अभी कमांड टास्क पर Next. नेक्स्ट इज कमांड टास्क. ठीक है. या. So next day we had a command task. GTO ने कोई लिमिट नहीं रखी थी हेल्पर्स के ऊपर. That it is your choice. Either you want to go solo और सारे हेल्पर्स लेना चाह रहे तो सारे ले सकते हैं. अच्छा. Something new. हाँ, so most of us had took 2 helpers or 1 helper. So I was a helper in 2 of the tasks, out of which 1 of them completed the task and other one was not able to do it. And I took 2 helpers with me, which I thought was the strongest one in the group. And I took them and उसके बाद I got the task which was looking very complicated. कि बहुत सारे structures उसमें बने हैं, but it was pretty simple because I could see the path. बहुत सारे टास्क वहाँ पे ऐसे थे कि illusion create कर रहे थे that they could be bridged between the 2 points, but there was like this much distance which was left. हाँ, तो ना plank ना बल्ली कुछ भी नहीं वहाँ रखा जा सकता था. So what I did, what I understood in the earlier task was कि रस्सी का use करना है, and I just made a loop and tied both of the structures and balanced the plank on it. And उसके बाद GTO asked me कि आपका मतलब how many people can cross using this structure. I said all 3 can cross and the material will be recovered. तो बोलते हैं कि okay, so now you don't have the rope. So that was one of the modifications which was done. So he said he gave a concession कि 2 लोग cross करो. Now you don't have the rope and tell me how you will be getting that 3rd one. So I put it like एक fulcrum और उसमें बैलेंस कर दिया, उसको फिक्स कर दिया था एंड बल्ली फिक्स कर दी एंड तीसरे को भी मैं आई वाज एबल टू रिकवर दैट पर्सन विद अलोंग विद द मटेरियल. सो आई कुड कंप्लीट द कमांड टास्क. तो इन कमांड टास्क आल्सो यू गिवन सम प्रेशर वगैरह क्रिएट करा. तुम ऑर्डर्स दिए तुमने कमांड टास्क में? हाँ, आई गिव द ऑर्डर. बाकियों के ऑर्डर्स तो कैसे सुन नहीं पाया बिकॉज़ जल्दी मतलब हाँ, आई वाज द हेल्पर इन 2 ऑफ देम. सो मतलब बाकियों ने काफ़ी मतलब क्लियर, हाँ कुछ एक ने मेंशन कर दिया था कि ये चीज़ें सारे फैक्टर्स मेंशन कर दिए थे. दूसरे ने बस इतना बोला था कि वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क. बट यू गिव जो मैंने आई बताया गिव द था एंटायर सारे फैक्टर्स. क्या क्या याद है? भूल गए. Time, task, resources, rules and request. एंड लास्ट में Any doubts? ठीक है, याद है आप लोगों Yes, sir. को? ओके. So one question. NGT, PGT, and CT. You have attempted on the first attempt, or you are doing just a hit and trial? I used to think about it कि what would be the solution that would be working here. So when you are implementing, or just thinking what the. ये पहले थिंक कर रही थी, उसके बाद कर रही थी. मेंटली जो बताया था, मेंटली शी वाज वर्किंग ऑन इट व्हेन शी वाज बेसिकली. ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट यू डू. Yeah.
You So since I'd worked here, कई बार कर लिए थे ये टास्क, तो I had an idea कि मतलब किस तरीके से काम कर सकता है चीज़. So I used to implement that, and I had good luck कि मतलब वो काम कर गया था. And is there someone in your group who is opposing your implementation? What were you doing? Not in the command task, but yes, they did in HGT, and well, they were not able to create a stable structure, and then they implemented my solution. They were able to do it. so भी कुछ पूछो. Did anyone ask you for suggestion in command task? Command task बोला ना, no sessions to be given. हाँ. Did anyone ask you? No. ये बोला था कि सेशंस नहीं लेने, बोला. हाँ. सर्कुलर था ये तुम्हारा? इट वाज लाइक वन ऑफ दी स्ट्रेट लेवल एक था. स्ट्रेट हाँ. लेवल 3 रहा होगा मेरे ख्याल से. हाँ सर, 2 और 3 के बीच कुछ ऐसा है. बट वो सब सिमिलर ये फिक्सिंग करके ही हो रहे हैं सारे, तो मुझे कुछ ऐसा फर्क नहीं दिखा किसी भी लेवल में. सो मच फॉर द कमांड टास्क. अब क्या रह गया? और कमांड टास्क से पहले छोटा सा इंटरव्यू भी लिया था GTO ने. हाँ, पूछ रहे थे कि सबके साथ किया था. 5-5 मिनट बात कर रहे थे वो सबसे. तो उन्होंने वो आगे बढ़ने लग गए, एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर. ही सेड कम वॉक विद मी, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड क्या कर रहे हो अभी इस पॉइंट पे, अभी तुम्हारा क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या क्या ब्रांच के लिए अप्लाई किया हुआ है, एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन AFCAT, इन EKT, एंड यही सब मतलब मेरे और भाई की बॉन्डिंग के बारे में. डिड यू टेक कोचिंग फॉर SSB, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर SSB. तो ये सब उन्होंने क्वेश्चंस एक जनरल मतलब पूछ रहे थे. तो interviewing officer, since he is there to be for 2 days, invariably he conducts a mini interview. So someone is going to be prepared for that. Expect you to पूछेगा something similar to which he asked the interview. Tell me something about yourself नहीं होगा, CAT नहीं होगा, वो सब नहीं होगा, but at least basic questions तो पूछेगा. Basically he just checking your conversational कितना confidently बात करते हो. Yeah. So that at that point of time where he was taking the interview, it will affect the result, Yeah. He is getting. or it is just a casual talk? नहीं, there is nothing casual about anything in the No, sir. process. The way कुछ भी casual नहीं है. so it will affect the result. Of course it will. So it will appear that he is talking to you Very casually, casually, but but it is yeah, you have to be careful. आपको casual नहीं होना है. मैंने एग्जांपल दिया था आपको इंटरव्यू में एग्जांपल देना. अरे यार मैंने भी ना पॉकेट में चोरी करी थी, मैं तो करता, तूने भी करी होगी ना. ही इज ट्राइंग टू पुट यू इनटू दैट मोड कि भाई मैं कैजुअल हूँ, तू भी करता होगा. डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट प्लीज. आप अपना जो क्या कहते हैं डिसिप्लिन है या जो डिफेंस है उसको मेंटेन करें. डोंट बिकम हिज फ्रेंड. ही इज नॉट योर फ्रेंड. ही इज देयर टू सेलेक्ट यू और रिजेक्ट यू. और ये इसलिए करा जाता है बिकॉज ऐसे वक्त पे जब बिल्कुल जब फ्रेंडली हो जाते हो तो यू स्टार्ट शेयरिंग योर वेरी वेरी पर्सनल इश्यूज. और वही चाहता है, आपकी कहानी, अंदर की कहानी सुनना चाह रहा है आपकी. डोंट गिव इट अप प्लीज. डोंट डू दैट. ओके. After the command task, we had our individual obstacles. So the GTO explained to us कि क्या क्या करना है, and the points given to each of the obstacles. And after that, we were given 3 minutes each the obstacles. अब जहाँ से start करना है. दूर होते हैं. हाँ, मतलब दूर होते हैं, भागना पड़ता है उसमें. भागना पड़ता है उसमें. ये नहीं कि ये इतना पास में है. हाँ. वहाँ काफ़ी एरिया होता है. You have to run for that. So from which obstacle did you start? So I started from number 1 to ऐसे करके gradually I went. So I skipped out on the balancing beam because वो काफ़ी high थी and उसमें time जाता है. Knew और that. कितना दिया वो? नहीं, हिलती नहीं है वो फिक्स्ड एक बल्ली थी बहुत लंबी सी. सो दैट वाज द बैलेंसिंग बीम. सो आई स्किप्ड आउट ऑन दैट कि लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे. एंड आई डिड ऑल द अदर ऑब्स्टिकल्स. सो माय टाइम वाज अप बिकॉज आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द वर्मा ब्रिज. इट वाज हाई एंड इट वाज वेरी लॉन्ग. सो दैट आई वाज एबल टू डू 7 ऑब्स्टिकल्स आउट ऑफ 10. It's good enough. 7 out of 10. Anyone who did lesser and still got cleared the SSB? पूछा नहीं. नहीं सर, मुझे नहीं लगता. मतलब 6 थे ज़्यादा कम से कम. मतलब मैं 6 सुने हैं जो अभी रिकमेंडेड ग्रुप था हमारा. ये लोगों ने सच भी तो नहीं बताया ना, चुपचाप भी तो रहते हैं. हाँ, Nobody. 6 भी बताए लोगों ने, बट मैंने 7 ही मोस्टली सुना. 6 and 7 was the thing. जो Okay. So individual obstacles हो गए and
वहाँ पे ये तो होता नहीं, स्नेक रेस तो कराते नहीं मेरे ख्याल नहीं, से, snake है ना? जिसको तुमको पसंद नहीं है ना वो, यू डोंट लाइक दैट। हाँ वो नहीं हुआ था। एयरफोर्स में जनरली स्नेक रेस वगैरह इज अवॉइडेड, ठीक है? या आफ्टर दैट वी हैड अ फाइनल ग्रुप टास्क, जो इसमें एक लेवल दे दिया था हमें, 2-3 स्ट्रक्चर्स क्रॉस करने थे एंड वी वर एबल टू डू इट 8 करेक्ट, हाफ एन आवर और कितना, हाफ एन आवर? 15 minutes for the final group task, 15 or 20 minutes, अब मुझे याद नहीं कितना था, बट वी वर एबल टू डू इट इन 8 minutes क्योंकि वो रख रहता है टाइम। So with this, the GTO was over. Anything else GTO में कुछ which you thought is important for या जो बता दिया तुमने सारा? हाँ मतलब यही है, GD इज़ समथिंग विच गॉट हाईलाइटेड फॉर मी कि GD में आप अपनी एक इम्पोर्टेंस आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई रियलाइज, बिकॉज व्हाट हैपेंड विद मी वाज आई स्पोक फॉर ओनली 3 or 4 times, but 2 of my own group members came to me after the GD and they said you had very good points. You spoke like very few times and but you had really good points, so your content was good. समझ लो इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। डोंट हैव टू स्पीक 10 times, 20 times, 15 times, 3 से 4 बार बोलो, लेकिन अच्छा बोलो, कंटेंट के साथ, ठीक है? Did anybody speak along with you? You got stuck with someone? No, you never got stuck with you. Once I think I got stuck with someone, so I kept quiet for that time and let that person speak, and after that I spoke my point. Okay. Okay. Anything else on GTO में कुछ पूछना चाहते हैं? Yeah. During command task, did GTO ask you why you select these 2 candidates? Yes, he did ask me about that. So I told him that so I gave different reasons for both of the candidates. Chess number 8 was very strong in a physical thing. She was able to pick up the balli and plank, what I noticed earlier. And chess number 5 was very lightweighted, so she could cross the thing. Lightweight, height, and maybe what she's saying strength. इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। Selection of candidate is purely based on these details. Remember that, ये पूछा जाएगा आपसे और आपको बताना है। Okay, so be prepared for this part. Anything else? So should we proceed to the interview part? Yes, sir. We'll proceed to the interview part. So, can I ask for a couple of things? Yeah, continue. So the same day I had my interview. After the final group task, we went and we had around 20 minutes to change into a formal attire, and then we were sitting down in the Fourth day was तुम्हारा interview? नहीं sir, Third day. हाँ, Third day after the GTO got over. GTO was. Okay. So we were sitting there and I was immediately called in the hall, and so my interviewing officer, he explained to me that for next 40-45 minutes we'll be talking about जो you. कहानी हाँ, हाँ, हाँ. I know everything which is there in CAQ हाँ हाँ and ये वो हाँ be feel free. हाँ, feel free. And so my interview was mostly based on personal questions. कि family के साथ bonding, with my brother there were a lot of questions, with my friends there were a lot of questions. What I noticed was the interviewing officer was cross-checking whatever I was saying in different kind of ways. कोई sample example दे? हाँ, जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि what are my hobbies. So in hobbies I mentioned that I do Kathak and that dramatics is one of my hobbies. After that he asked me what I do on my free days. So I mentioned again that I do Kathak and I maybe watch series and this. And then again he asked me in a different manner after 8 to 20 questions that if I give you some free time, what would you be doing? Then I will mention that I am going to practicing Kathak and everything. So that's something I noticed, that he was cross-checking my answers at different points in the interview. आप समझ रहे हो इस बात को? ये क्रॉस चेकिंग इम्पोर्टेंट है, जैसे कहें कि सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, कुछ नहीं। कोई कथक में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। इसलिए मैंने अपने डेली रूटीन में जो मैंने बताया था, एक वो डेली रूटीन पूछा नहीं पूछा था। तो डेली रूटीन में बताया था, कथक वाली बात बताई थी ऑन अ क्योंकि हॉलिडे। मैंने ऑन अ वर्किंग डे का उन्होंने पूछा था, तो मैंने ऑन अ वर्किंग डे बताया। तो ऑन अ वीकेंड मेरा ये था, वीकेंड का उन्होंने अलग से पूछ लिया कि वीकेंड पे फ्री टाइम में क्या करते हो, उसमें तो बताया। देयर आई मेंशन। ठीक है ना? रिमेंबर आपकी हॉबीज, रिमेंबर जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको आप किस में लेकर आएंगे? योर डेली रूटीन में लाना ही कंपलसरी है।
रिमेंबर दैट पार्ट। इसके अलावा जो घर में मैंने बताया था कि आपको एक और जो सीएजी में बोलते हो कि व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू टेक पार्ट एट होम, सीएजी में लिखा हुआ है दैट ऑल्सो शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर डेली। आप कौन सी एक्टिविटीज में टेक पार्ट करते हैं इसके, तो रिमेंबर दिस पार्ट। ये सब क्रॉस चेक करने वाले क्वेश्चन, खास करके डेली रूटीन वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अच्छा ये पूछा कि whom are you close to and बोला उसमें बोला हाँ पूछा था, you मतलब confided? हाँ you confided and advice के लिए किसी पर जाते कोई इंसिडेंट पूछा उसने? इंसिडेंट उसमें नहीं पूछा था, बट इंसिडेंट जो है मेरी जैसे फ्रेंड से रिलेटेड था कि मतलब फ्रेंड की what would your friend say your shortcoming is, so can you tell me an incident where this happened, so इस तरीके से पूछा था, so I told him. रिमेंबर दैट एक लाइन से आप बोल दोगे उसकी शॉर्टकमिंग क्या है, कहानी खत्म नहीं होगी। मैं भी 2-3 दिन लोग इसके तो उनको बता रहा था, लेकिन गो बियॉन्ड दैट। आप बोल दो कि उसकी ये शॉर्टकमिंग तो बताइए, कोई इंसिडेंट बताइए, तो नोट डाउन उन इंसिडेंट्स पहले से ही आप, उस वक्त अचानक से याद नहीं आते। ओके, शुड बी रियली स्मार्ट इनफ टू रिमेंबर द इंसिडेंट्स। या ऐसी एंड डेली रूटीन में उन्होंने ये चीज़ क्रॉस चेक की कि सिंस आई मेंशन आई अटेंडेड अ कोचिंग फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन, सो उन्होंने ये पूछा कि यू आर स्टिल इन योर कॉलेज एंड हाउ डिड यू मैनेज टू गो, वर यू बंकिंग योर क्लासेस और समथिंग, so I told him I adjusted in my routine. I wasn't having any classes at the moment, but I adjusted it since we used to have our classes from 6:45, and I told him that from 6:45 till 10:30 I have my class, and from 11:15 I attend the coaching. So that's how I just manipulated my answer a little bit because I had to at the moment. ठीक है, सो क्रॉस चेक नहीं करा उसने? किस चीज़ को? स्कूल का टाइम क्या है तुम्हारे, क्लास स्कूल कॉलेज? हाँ पूछा, क्योंकि I mentioned it earlier when he asked me about one of my weaknesses. What would your friends say your weaknesses? So I told him that I wake up late. I don't wake up as early as I want to. Like at 6 o'clock, I have a 6:45 class. So my friends at times have to wake me up at 6:30. So to have my entire setup ready, laptop and everything. So I mentioned it there, and he cross-checked it in the daily routine whether I have my classes or not. बराबर, सब कुछ क्रॉस चेक होगा। डोंट कंसिडर कि जो बोलोगे वो मान लिया जाएगा। तो और जो मैंने बताया, अगर झूठ बोलना है तो झूठ की तैयारी 4 गुना 5 गुना करनी पड़ेगी। सच तो बोल सकते हो आप, ये झूठ को डिफेंड करना सबसे मुश्किल होता है। उसकी तैयारी 4-5 गुना, जो मैंने एग्जाम्पल दिए आप लोग क्लासेस में, चाहे सुफेल अली का दिया है या मैंने किसी और का भी दिया है, तो वो आपको 4-5 गुना तैयार करना। इसका दिया था मैंने, क्या नाम है, प्रखर यादव का दिया है मैंने, स्टडिंग समवेयर एल्स बट ही किसी और स्कूल में कर रहा है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आप ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, So इंटरव्यू में क्रॉस चेकिंग कहीं लगा तुमको इंटरव्यू में कि यू थॉट कि कॉर्नर नहीं, ही शी कौन ही ग्रुप कैप्टन मोस्ट प्रोबब्ली। So I was comfortable during the interview and I wasn't worried कि मैंने ये बोल दिया तो अब इसके आगे कभी ये ना पूछ ले, because mostly I like सच बोल रहे थे, सच बोल रही थी मैं सब कुछ। मतलब झूठ भी सच था? झूठ भी नहीं था, वो झूठ नहीं था सर, वो थोड़ा सा टाइमलाइन को थोड़ा चेंज कर रही थी मैं, बट आई वाज कंफर्टेबल विद इट थ्रू आउट द इंटरव्यू बिकॉज आई वाज ऑलरेडी टायर्ड फ्रॉम ऑल द GTO टास्क, सो आई डिड नॉट हैव दैट मच माइंड टू पुट इन देयर, बट आई वाज कंफर्टेबल इन सेइंग व्हाटएवर आई वाज सेइंग। आई न्यू कि हाँ मैं ये बोल रही हूँ, सो इफ़ ही क्रॉसेज मी और इफ़ ही आस्क फॉर मोर क्वेश्चन, इफ़ ही आस्क मोर क्वेश्चन आई वुड बी एबल टू आंसर। हाँ And last में बोला कि like to ask me any questions या नहीं? हाँ he asked me. You asked any I questions? asked him about his experience of his first SSB. Achha. So he told me that you will be keeping these memories for a long time and this and that. So he told me. Don't be afraid to ask a question. It in fact shows your bold character. So you can prepare a question. You can also ask a question. ठीक है? Okay. So much so for the पूरा SSB followed by conference. तो फोर्थ में क्या करा? GTO कंटिन्यू करा? नहीं, एक दिन हमारी छुट्टी ऑफ हो गया। ऑफ हो गई। तो फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या रहा? कॉन्फ्रेंस में मैंने जो देखा कि सबका जो है काफ़ी जल्दी जल्दी बुला के जल्दी जल्दी भेज रहे थे, एंड वी आस्क्ड देम ऐसी मतलब
दूर से ही पूछ क्या लिया कि पूछा? क्या पूछा तो इसे कि कुछ नहीं, क्वेश्चन एंड चले गए. How was the food? How was the stay? Any suggestions? That's all. यही है ना? हाँ वो पर मेरे टाइम में जो है चेस नंबर 5 के टाइम में शी हैड अ लॉन्ग वेटिंग टाइम आउटसाइड द हॉल. Borderline किस थी? शी गॉट रिकमेंडेड तो हाँ, समझ I don't know, हाँ तो उसका भी था एंड उसको 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे अंदर जाके. मेरे टाइम में इट वाज एन इवन लॉन्गर टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग आउटसाइड. It was around 10 minutes I was sitting outside and after that I had a very long conference because I think the president was from my college only. तो दयालबाग का? हाँ अच्छा, बिकॉज उन्होंने एक सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज दयालबाग डूइंग सो ही वाज गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट वी डू. तो नहीं होगा तो दयालबाग की वजह से पता नहीं सर. Possibility, sir. वो लिफ्ट मिल गई इसको. फिर ऐसा होता नहीं है कि आर्म फोर्सेस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which is fortunately still much above all the other issues. So what all did he ask you there conference में? So how is Dayalbag doing nowadays? What all activities do you participate in? Again मेरी co-curricular को project यहाँ पे हुआ. And उसके बाद he asked me that how does studying in Dayalbag give you an upper hand over the other candidates? क्या बताया? मैं बता दी कि we do a lot of things which are not traditionally considered a part of the curriculum. activities, yes. So, like the agriculture operations, we are working in the fields as well. So that makes us more grounded and humble and helps us understand and get along with people even better. So that's why I think I have an upper hand over the other candidates. So these were the questions कि आप कैसे handle करोगे if there is like trouble going on in your group or something. आपके इवेंट आप मैनेज कर रहे हो तो उसमें कुछ हो रहा है, there is somebody who is creating a lot of problems. हाँ तो इट वॉज अ लॉन्ग कॉन्फ्रेंस. मतलब मैंने पूछा नेक्स्ट वाले कैंडिडेट से कि कितने देर तक अंदर थी मैं, तो वो बोल रहे थे 10-12 मिनट तो अंदर थी आराम से. तो ही हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी. उसके बाद वी वेंट That Viva moment. हाँ तो when we went to the waiting hall तो मतलब हमें लगा कि 1 घंटा वेटिंग होगी 2 घंटा, बट स्टिल since the repeaters batch had their GTO going on there on that day, so we had to wait for an even longer time. We had to wait for about 4 hours or something. By that time we were all very tired. drowsy and sleepy. We were very tired and so the first chess number which was announced was chess number 5. She was from my group only and we all were very happy. तो मुझे लगा कि एक ग्रुप से 2 तो होते नहीं है तो छोड़ो अभी जाएंगे हम सूटकेस उठा के. But then he announced chess number 7. So I was in a shock. I was in a shock for a very long time. Half of the documentation I was not able to believe. Like when I called you up, when I spoke to you, I was in a shock at that moment. You called up your brother. No, I called when I spoke to you. That's why I said when I spoke to you. Naturally. What happened incidentally, brother was sitting with me on that day, Ayush. सामने बैठा था तो उसके पास कॉल आया, मैं सामने बैठा हुआ था. उसकी बातों से मैं समझ गया कि so yeah, you called your brother. I called my brother when I spoke to you after that. I was still not very much like in. Yeah, I could feel yeah. that. सर मेरे को डॉक्यूमेंटेशन का सर मेरे को डॉक्यूमेंटेशन. हाँ मुझे पिन कोड जानना था क्योंकि पिन कोड पूछ रहे थे वो उस टाइम पे. But yeah, when it just settled down, so I was like कर लिया, हो गया. Wonderful feeling you had. It's a wonderful feeling. So if we sum it up, maybe in 5-6 sentences, what do you think is needed to clear the SSB in your opinion? मैं तो अपना opinion दे चुका हूँ. In your opinion, because no horse's mouth. मतलब I can't really say what got me selected, but some things which I did there was number one, like कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है. Like site test is in your hands. You can do it. It's on the individual level. The most important thing is जो आपके GTO group task होते हैं, group को समझना is very important. What I felt there. Did you कमरे में थोड़ा social activity भी बढ़ाया था? हाँ तुमने बताया था मैंने. हाँ तो सोशल एक्टिविटी हमारा, मैं फर्स्ट डे पे आई वाज जस्ट लिसनिंग, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग पीपल कि मतलब ज़्यादा नहीं मतलब वो कर रही थी इंटरेक्ट, बट हाँ मैं ऑब्जर्व कर रही थी कौन किस तरीके का है, कौन कहाँ क्या बैकग्राउंड है किसका. तो उससे आई गॉट टू अंडरस्टैंड देम बेटर. फिर डे 2 डे 3 से वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल. सो वी आर ऑल कनेक्टेड एज वेल नाउ. बट यही ज़रूरी है कि ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है
कि कौन किस बैकग्राउंड से आता है, किसका किस तरीके से दिमाग चलता है, तो उसी से आप जो है उनको इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं, दैट्स वेरी Ability इम्पोर्टेंट. to influence the group. या ठीक है, out of those 15 OLPs. So first thing you said is that साइक तो आपको करेंगे जी ग्रुप वाले एक्टिविटीज में सोशल वाला और उसके अलावा उसके अलावा इंटरव्यू के लिए व्हाट आई फेल्ट वाज कि बिल्कुल रॉक सॉलिड आंसर्स प्रिपेयर करके जाना है अपने आंसर्स, मतलब वो भी ऐसे भी नहीं लगे कि